Hello everyone, how are you all? Hello, sir. We are fine, sir. Fine, sir. What about you? I'm also fine, thank you. Beta, already I have sent the recorded video of the chapter number 8. Already I have sent the recorded video of the chapter explanation of the chapter number 8. In the chapter number 8, there is a poem, and the title of the poem is The Blindness. And already I have explained in Hindi as well as in English, and in the recording, and the link was sent to you all. So you all are supposed to watch that video. Thereafter you want to thereafter we are supposed to, after watching that particular explanation, today we are supposed to discuss the exercise part of that poem that is based on that poem. So how many of you have already watched the video? Can you show me your hand? Okay, Abhishek already have watched, Prachi, Khushi as well, Muskan, Anurag Upadhyay, Abhishek Pandey, Rakesh Tiwari, many of you already have watched. Good. So beta, in this session, it's just a query session. Is there any things do you want? Is there any things in the poem that you could not understand? If is there any query, any question, you all can ask. Please ask. Do you have any query, any questions? I'm not getting any reply, whether it is yes or no. No, Have any sir. query or not? No, sir. Everybody have understood the poem? No, sir. No, sir. Now I'm asking that whether you have understand the poem, whether you have understood the poem or not. Sir. Yes, sir. सुनाई पड़ा इसलिए. Sir. So, beta, in this poem, the poet Charles Lamb is telling about an incident when he was traveling in a stagecoach. Stagecoach means क्या है बताया गया है आपके यहाँ पे इस बुक में मीनिंग भी लिखा गया है, a four wheel vehicle. थोड़ा सी घोड़ा गाड़ी है, किराए की गाड़ी आपको में कहीं देखा होगा. So are you all ready? Because already I have done the explanation part. तो इस वीडियोस में, इस सेशन में आपसे क्वेरी होना चाहिए किस लाइन का, इस पर्टिकुलर स्टैंजा में क्या पोएट कह रहा है. तो कितने लोग इसको बताने के लिए रेडी हैं? जिन्होंने देखा है वो बता सकते हैं. ठीक है, तो पहले स्टैंजा में क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इन द फर्स्ट स्टैंजा? हु कैन स्पीक? अभिषेक यादव आप ही बताइए, शुरुआत आप ही करिए. पोएट क्या कह रहा है फर्स्ट? Yes, sir. In the first stanza में सर स्टेट कॉज चार पहियों वाली गाड़ी होती है जो घोड़े द्वारा चलाई जाती है, उस पे पोएट बैठकर जा रहा था जल्दी में. तो उसने एक छोटी सी बच्ची को देखा जो रास्ते में उसने देखा था, जो अपने मन में कुछ बैठकर सोच रही थी. In the first stanza, the poet noticed a little girl. The girl was busy. The girl was, मतलब जो poet है वो ये ऑब्जर्व करता है, उसे ये लगता है कि the girl was seemed to be busy. She was thinking about something. जैसे कि बच्चे सोचते हैं. Yes, sir. तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं पता चला कि पोएट ने बस यही देखा. यहाँ पे जो पोएम की सेटिंग किया जा रहा है कि where it was happening. तो पोएम है जो यहाँ पे जो भी सिचुएशन जो भी बताया जा रहा है, ये कब घटित हुआ और कैसे हुआ और उस समय वो किससे मिले. तो उसके बाद क्या हुआ सेकंड स्टैंजा में? सेकंड स्टैंजा में पोएट क्या कर रहा है? अभिषेक पांडे आप ही बताइए. सर, इन सेकेंड स्टैंजा सर बूढ़े आदमी के जैसे पोएट ने एड्रेस्ड करके कहा, द चाइल्ड एंड कॉल्ड हर प्रेटी डार्क आइड. उसने उसकी आंखों की प्रशंसा की. एंड बिड हर टर्न दोज प्रेटी आइज एंड सी. एंड उसने कहा, पोएट ने कहा कि पीछे अपनी आईज से देखो. द वाइड एक्सटेंडेड प्रोस्पेक्ट
इधर उधर सीनरी को। सर सी सैड, लड़की ने कहा। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके इस पोएम के बाद एक क्वेश्चन है भी। इफ यू लुक इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, इसको इसी वक्त साथ ही में डिस्कस भी कर लेते हैं। What did the poet mean by old man courtesy? The question is, what did the poet mean? इसमें old man courtesy से poet क्या मतलब, जो poet ने यूज किया है old man courtesy से, इससे क्या अभिप्राय है, इससे आप क्या समझते हैं, क्या मीनिंग निकाला गया है? यहाँ पे अभिषेक पांडे ने बोला बूढ़े आदमी, क्या बताया बेटा, जरा फिर से बताओ तो। बूढ़े आदमी की भांति। बूढ़े आदमी की भांति नहीं, बूढ़े आदमी की भांति नहीं, बूढ़ा है। देखो ओल्ड मैन कर्टिसी, इसका जो सही मीनिंग होगा मैंने आपको पोएम में बताया भी है। ऐसा कोई बता सकता है व्हाट आई हैव टोल्ड द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड्स इन द पोएम? कौन बता सकता है? मुस्कान यादव, व्हाट आई हैव टोल्ड? सर द पोएट स्पीक्स पोलाइटली टू द गर्ल। हाँ, इसमें ठीक है, वेरी गुड। आई एड्रेस, इसमें देखिए पोएम इस लाइन को अगर आप पढ़ेंगे, लिखा आई एड्रेस्ड, किस तरह एड्रेस किया? एड्रेस किया उस लड़की को, उस छोटी बच्ची को एड्रेस किया, किस तरह एड्रेस किया? विथ एन ओल्ड मैन कर्टिसी। ओल्ड मैन कर्टिसी यानी एक परिपक्व, ओल्ड मैन मतलब जिसके जो मैच्योर्ड फेस हो, जो परिपक्व हो, यानी एक बहुत ही परिपक्व, कर्टिसी यानी शिष्टाचार की भांति मैंने उस बच्ची से को एड्रेस किया। अब इसको आप परिपक्व शिष्टाचार की भांति, वहां पे एग्जाम्पल दे रहा है किसी दूसरी चीज की तरह। दैट मीन्स ये परिपक्व शिष्टाचार क्या होता है? जब आप पोलाइटली बोले और एक शुरुआत जो है आप किसी कॉम्प्लीमेंट के साथ शुरू करें, यानी एक पॉजिटिव वे में शुरुआत करें। तो एक ओल्ड मैन कर्टिसी, इसको हम कह सकते हैं द मीन ऑफ द ओल्ड मैन्स कर्टिसी। जो यहाँ पे पोएट जो इसका मीनिंग निकाल रहा है कि द पोएट एड्रेस द गर्ल वेरी पोलाइटली इन अ वेरी डिसेंट मैनर, बहुत ही अच्छे तरीके से किया। कैसे किया? वो बच्ची को पहले कॉम्प्लीमेंट किया, फिर उसके बाद उसकी आंखों की तारीफ करते हुए जो वहां की सीनरीज की थी, जो वहां पे हॉरिजन, जो खुला आसमान, यानी वहां के नजारों को देखने के लिए कहा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद व्हाट हैपेंड इन द थर्ड स्टैंजा, तीसरे स्टैंजा में क्या हुआ? प्राची जायसवाल। सर इस स्टैंजा में कहा गया है, जब लड़की उस बूढ़े औरत से बात कर रही होती है तो कहती है कि मैं नहीं देख सकती इस सीनरी को क्योंकि मैं एक अंधी लड़की हूँ, और वह हिचकिचाती नहीं है, डायरेक्ट बोल देती है। यह सुनकर उस पोएट को बहुत जोर से झटका लगता है कि वह बिना हिचकिचाए बोल दी मेरे सामने। इस स्टैंजा में फिलहाल जैसा कि प्राची ने बताया कि वो जो छोटी लड़की है वो बिना हिचकिचाए, बिना हकलाए बहुत ही आसानी से कह देती है कि आई कैन नॉट सी द प्रोस्पेक्ट, मैं प्रोस्पेक्ट को नहीं दे सकती, आई कैन नॉट सी द सीन्स व्हाटएवर दे इज गेटिंग पास्ट, जो भी पास हो रहे हैं ये सारे सीन्स को मैं नहीं देख सकती बिकॉज आई एम ब्लाइंड, क्योंकि मैं अंधी हूँ। और यह शब्द जैसे ही पोएट के कान में पहुंचा, he was full of sorrow, वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। और इसी बीच जो लास्ट लाइन में स्टैंजा में ही जो वो लड़की है उसकी मदर का एंट्रेंस होता है, उस मदर का भी इंट्रोडक्शन, यानी वो भी उसका भी इंट्रोडक्शन होता है, वो भी वहां पे आती है, वो भी वहां पे एंटर करती है। फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टैंजा में? खुशी वर्मा, बेटा आप एक बार कोशिश करो। इन द फोर्थ स्टैंजा क्या हुआ था? चौथे स्टैंजा में क्या हुआ था? आकृति पांडे बता पाएंगे आप? रत्नेश तिवारी, व्हाट हैपेंड इन द फोर्थ स्टैंजा? सर इन द फोर्थ स्टैंजा सर हर चाइल्ड वर साइटलेस, सर उनकी बेटी सर दृष्टिहीन थी, सर वो किसी चीज को नहीं देख सकती थी। ऑन अ ब्राइट डे सी सा हर ले हर नीडल वर्क ए साइड, सर उसने अपने बुनाई करने, सर वो जो बुनाई कर रही थी उसको साइड में रखती है। एंड on such occasion mother will for leaving off her work began to chide,
सर उसकी माँ कहती है कि तुमने इसको साइड में क्यों रखा, काम पूरा करो। चलिए, इस स्टैंजा में क्या हुआ है, उसकी जो माँ है वो ये बताना चाह रही है कि उसे कब पता चला कि उसकी बच्ची दृष्टिहीन है, उसकी बच्ची को नहीं दिखता है। वो एक इंसिडेंट के बारे में डिस्क्राइब करती है कि एक फाइन ब्राइट डे, एक दिन ऐसा होता है कि जब उसकी बच्ची जो है वो कोई बुनाई का या निडल वर्क कर रही थी, वो उस काम को टाल रही थी, लेकिन ऐसे में उस ओकेजन पे उसकी माँ ने उसको अपने उस काम को पूरा कर लेने के लिए कहा। एंड द गर्ल्स मदर चाइल्ड द गर्ल मतलब स्कोल्डेड द गर्ल। चाइल्ड मीन्स एक तरीके से स्कोल्डिंग, डांटना, उस अपने बच्चे को डांटा फॉर लिविंग ऑफ द हर वर्क, वो अपने काम को छोड़ने के लिए उसको डांटा। लेकिन फिर क्या हुआ, इन रिस्पॉन्स गर्ल्स रिस्पॉन्डेड इन द नेक्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या हुआ, अनुराग उपाध्याय? In the next stanza, the girl say that I will, मैं यह काम जब करूँगी जब दिन होगा। I cannot work, मैं कुछ काम नहीं कर सकती। माँ अभी रात हो गई है। The sun shone bright upon her when she spoke, वो जब वह यह बोल रही थी तब धूप निकला था। And yet her eyes received no ray of light, but उसकी आंखें लाइट की किरणें नहीं रिसीव कर रही थी, नहीं प्राप्त कर रही थी। ठीक है, लास्ट स्टैंजा में क्या हुआ, उत्कर्ष आप भी बताइए एक बार। लास्ट स्टेंजा में हुआ था सर, तेज बोलो, सर, जैसे कुछ लोगों को सुनाई तो पड़े, मुझे ही नहीं सुनाई पड़ रहा है। I वन, और ये लड़की बोली कि I do it when daylight, if you please, I can't work mama, it is night। सर वो लड़की बोली थी जब दिन होगा तब मैं निडल वर्क करूंगी। तब the sun shone bright upon her when the spoke, तब वह बोलती है कि तब वहाँ सन निकला था। and yet I received rays, और धूप की किरणें भी पड़, लाइट भी थी। बेटा ये लास्ट लाइन है ना, जो लास्ट स्टैंजा है, इसमें जो बच्ची है, जो छोटी बच्ची है, वो बताती है अपनी माँ को। यहाँ पे फिलहाल एक दिन निडल वर्क के लिए जब उसको डांट पड़ी, तब उसने कहा कि मम्मा आई विल डू दिस व्हेन डे लाइट, जब दिन होगा तब मैं ये काम करूंगी। आई कैन नॉट वर्क मामा, इट्स नाउ इट्स अ नाइट, अभी रात है, अभी मैं नहीं काम कर सकती। और इन दिस वे जब ये बातें कह रही थी, द गर्ल्स मदर ऑब्जर्व दैट कि उस समय वो ब्राइट डे था, मतलब एक सनी डे था, प्रॉपर्ली दिख रहा था। एंड येट हर आईज रिसीव नो रे ऑफ लाइट, फिर भी हर आईज डिड नॉट ऑब्जर्व द रे ऑफ लाइट, जो सूरज की किरणें थी, जो रोशनी थी, वो नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे थे। तब उसको पता चला कि हर चाइल्ड वाज साइटलेस। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। बहुत ज्यादा नहीं एक्सप्लेन किया गया अभी इस लाइव क्लास में, क्योंकि ऑलरेडी आपके रिकॉर्डेड वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था। आप लोगों ने देखा है वीडियो, बस यही चीज जानना था, आप लोगों ने बताया, लग भी रहा है कि हाँ, यू ऑल हैव गॉन थ्रू द वीडियो। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर। इन द फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द पोएट मीट द गर्ल? Where does the poet meet the girl? It's a very easy question. Akriti Pandey, you have to tell. बेटा समय नहीं व्यतीत करना है, तुरंत जैसे नाम बोलूं तुरंत आपका माइक ऑन होना चाहिए, बता पाए तो बताएं, नहीं तो फिर आप बोल दें कि सर आई डोंट नो। आप इतना बोल देंगे या आप नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब आपको आता ही नहीं, आपने वीडियो ही नहीं देखा है, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैंने हिंदी में आपके रिकॉर्डेड वीडियो में भी समझाया था। सिर्फ आंसर ही नहीं बोल दिया, हम एक आध क्वेश्चन का आंसर भी बता दिए। Where does the poet meet the girl? Akriti. The poet meet the girl.
अरे मैं हिंदी में पूछ ले रहा हूँ, जो पोएट है वो लड़की से कब मिले, कहाँ मिले, कहाँ मिले, जो पोएट है वो लड़की से कहाँ मिला, कहाँ मिले? सर वो पोएट उस लड़की से, सर जब वो लड़की बुनाई कर रही थी उस समय वो पोएट उसे मिला। अच्छा, बुनाई कर रही थी तब मिला था, क्या बात है, आपने यही पोएम सुना है? खुशी वर्मा आप बताइए, पोएट लड़की से कहाँ मिला? The poet met the girl during travel the stagecoach. जब वो स्टेज कोच में ट्रेवल कर रहा था तो वो लड़की को एज ए को पैसेंजर की तरह, वो तो बुनाई कर रही थी, तब उसकी मदर ने देखा, वो तो इंसिडेंट बता रही थी, उसकी मम्मी बता रही थी कि उसको कब ऑब्जर्व हुआ। आप यही सुनी है, यही आपको पोएम पढ़ा है, कहाँ पे दिमाग रहता है, चला करके केवल आप उसको प्ले कर देती हो। समझा भी तो करो, एक एक पोएम का आपको भी सोचना चाहिए, स्टैंजा में क्या हुआ, स्टैंजा में क्या हुआ, क्या बताया गया, एक सार अगर आप समझ लोगी थोड़ा सा ना, तो भी आपको ध्यान रहेगा। जो पोएट है, द पोएट मीट्स द गर्ल व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ स्टेज कोच। द पोएट मीट्स द गर्ल व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ स्टेज कोच। समझ में आया कहाँ पे मिला था? ट्रैवल के दौरान स्टेज कोच में मिला था, जो 4 पहियों वाली गाड़ी था वहां पे उस मिला था, वहां पे वो पोएट ने उस लड़की को देखा था कि वो लड़की किस इधर उधर की जो भी दृश्य जा रहे थे वो देख, कहीं किसी में भी नहीं इंटरेस्टेड थी। शी वॉज बिजी, शी वॉज थिंकिंग डीपली इन समथिंग अबाउट, शी वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग वेरी डीपली, बहुत ही गहरी सोच में वो डूबी हुई थी। ये सब कहाँ पे हो रहा था? इट वॉज हैपनिंग इन द स्टेज कोच। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे आप सभी? द पोएट मेट्स द गर्ल व्हाइल द पोएट मीट्स द गर्ल। अभी आपका ये प्रेजेंट टेंस में जब क्वेश्चन है तो आंसर भी आपको प्रेजेंट टेंस में डालना है, लिखना है। द पोएट मीट्स द गर्ल व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ स्टेज कोच। इज इट क्लियर? Yes, sir. Now move on the second question. Yes, Second question is also very easy. Why could not the girl see the wide extended prospect? Why could not the girl see the wide extended prospect? Wide extended prospect को गर्ल क्यों नहीं देख पा रही थी? और भी बच्चे हैं जो कथा सुन रहे हैं, उनसे भी पूछने दीजिए, इजी वाला आप लोग से थोड़ा पूछना है। अभिषेक यादव, अभिषेक पांडे, आप लोग वेट करिए। काव्यांशु पांडे जुड़े थे लेकिन नहीं अभी है। चलिए ठीक है, उत्कर्ष आप बताइए। उत्कर्ष, The girl sees white stand protect because the girl is blind. इसका आंसर आप इतना स्लो बोल रहे हैं बेटा, मुझे कुछ नहीं सुनाई पड़ा। बगल में और भी 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो मुझे उनकी आवाज ज्यादा सुनाई पड़ रही है। Sir, the white stand protects because the girl was blind. नहीं क्लियर हो रहा है, मुझे नहीं क्लियर हो रहा है, बाकी आप चाहे जो भी बोल रहे हो। खुशी वर्मा आप बताइए। खुशी नहीं, आकृति पांडे आप बताइए। आकृति, सबसे पहले आकृति। Why could not the girl see the world extended prospect? सर वो लड़की क्योंकि अंधी थी। तो आपको इंग्लिश में ऐसे कैसे लिखेंगे इसको? कौन कौन लिख ले जाएगा इसका आंसर इंग्लिश में? वो लड़की अंधी थी इज अ करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली यही इसका आंसर होगा। लेकिन इसको आप कितने लोग लिख ले जाएंगे इंग्लिश में? कितने लोग इंग्लिश में लिख ले जाएंगे? खुशी वर्मा बताइए। The girl could not see the wide extended prospect because she was blind. वेरी गुड, 100% सही, 100 में 100 नंबर, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बेहतरीन। The girl could not see the wide extended prospect because she was blind. वो अंधी थी। Simple answer. Now come to the third question. Why had the girl put her needlework aside? Why had the girl put her needlework aside? इसका क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, देखते हैं कौन बता पाता है। अभिषेक यादव आपके लिए बताइए। The girl put her needlework aside because she was unable to see, but she was aware that when the light comes, daylight, then I will do the work. अच्छा, इसका आंसर मैं बता दिया था, अब मुझे ध्यान आ रहा है। I discussed this answer during the recorded session ना, बताया था या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. The girl had put her needlework aside because
शी वॉज अनेबल टू सी, वो देख नहीं पा रही थी, शी वॉज अनेबल टू सी एंड हैड थॉट इट वॉज नाइट, और उसने ये सोचा कि अभी रात है। शी वॉन्टेड टू वर्क ड्यूरिंग द डे टाइम, वो क्या चाह रही थी, शी वॉन्टेड टू वर्क ड्यूरिंग द डे टाइम, वो दिन के समय में काम करना चाह रही थी। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया, लिख ले जाएंगे इसका आंसर। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट Yes, sir. सेक्शन। Yes, sir. बी सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द गर्ल्स मदर नो दैट हर डॉटर वाज ब्लाइंड? मुस्कान यादव। Sir, the girl's mother know that her daughter was blind when she scolded her for knitting. Then she told him that I will do this work in the daytime. ठीक है, आपने अपने वे में अपना आंसर दिया, दैट इज करेक्ट। वी कैन राइट द आंसर दैट द मदर रियलाइज दैट द गर्ल वाज ब्लाइंड व्हेन शी कंप्लेन इट वाज नाइट, जब उसकी मम्मा ने उसको डांटा उसके काम पूरा करने के लिए। देन when the girl told her mother, कब रियलाइज किया, when the girl told to her mother that it's a night, it's a dark night to do the needle work, वो needle work करने के लिए dark night है। जब ये कंप्लेन किया, जब ये बताया, तब उसको लगा, because at that time there was a bright day. The mother realized that, how we can write the answer of this question, the mother realized that the girl was blind when she complained that it was night and that she was unable to see even when the sun shone on her face, जब वो जो सूर्य था उसके फेस पे। आप अपने बुक में सही लिख सकते हैं इसका आंसर, when the sun shone bright upon her when she spoke, जब वो ऐसा बोली तब वो उस समय फाइन, मतलब एक ब्राइट डे था, मतलब प्रॉपर्ली डे लाइट था। तो उस समय जब वो शिकायत की, जब वो ये कहे कि शी इज नॉट एबल टू डू द निडल वर्क ड्यू टू द डार्क, ड्यू टू द नाइट, लेकिन उस समय दिन था, दैट इज देन हर मदर रियलाइज दैट कि हर चाइल्ड इज द साइटलेस। हाउ डिड द पोएट मीन बाय ओल्ड मैन्स कर्टेसी? अभी मैंने समझाया है, पोएम में भी थोड़ा सा एम्फेसाइज भी किया था, इसका आंसर अभी मैंने डिस्कस किया है, देखता हूं बता पाते हैं या नहीं। अनुराग उपाध्याय, व्हाट डिड द पोएट मीन बाय ओल्ड कर्टेसी? The poet mean by old man's courtesy is speaking in politely. ठीक है। By the old man courtesy, the poet, by the old man's courtesy, the poet means that he addressed the girl very politely and in a very decent manner. By old man courtesy, the poet means, by old man's courtesy, the poet means that he addressed the girl in very polite, he addressed the girl politely and in very decent manner. ठीक है? Yes, sir. Now the third question Yes, is, do you sir. think the girl was blind from birth? ये क्वेश्चन अच्छा है। Do you think the girl was blind from birth? Give reason for your answer. कितने लोगों को लगता है कि जो बच्ची थी वो जन्म से अंधी थी? They have to show one finger in the front of their camera. और जिसको लगता है कि नहीं बच्ची जो है जन्म से अंधी नहीं थी, उसको 2 फिंगर शो करना है। So I need response from your side. How many of you think that कि the girl was blind from birth? जिसको लगता है कि जो बच्ची है वो बर्थ से ही अंधी थी, they have to show 1 finger. Okay, क्लियरली दिखना चाहिए। I have received response from the अनुराग उपाध्याय। जल्दी सभी लोग दिखाएं, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। दोनों रिस्पॉन्स हो सकते हैं, कोई गलत नहीं हो सकता। What do you think? ठीक है, I have received answer response from आकृति, अनुराग उपाध्याय, अभिषेक यादव, मुस्कान, अभिषेक पांडे, रत्नेश। Many of you are showing 2 finger. केवल एक ही शायद प्राची ने 1 फिंगर शो किया था बाद में, लेकिन चलो ठीक है, अभी 2 दिख रहा है। फिलहाल 2 इज द करेक्ट आंसर। वो जन्म से अंधी नहीं थी,
लेकिन ऐसा क्यों ऐसा आपको लग रहा है? ये who can tell the answer? Prachi Jaiswal, why do you think that ki she was not blind from the birth? She was not blind from birth. Why do you think like this? Prachi Jaiswal, आपने सबका देखा तो फिंगर दिखा दिया क्या? चलिए आप ही बताइए, रत्नेश तिवारी, why do you think the girl was blind from birth? I think the girl was not blind from birth because, sir, if she was blind, so how she learned to do needlework? हाँ, ये ठीक है, सही है. अभिषेक यादव, what is your answer? Yes, sir. I think the girl was not blind from birth because when after asking about the needlework, then her mother know that she was blind, so that if she was blind from birth, then her mother know early. 2 बजे दूसरी क्लास है. चलिए मुस्कान यादव, what is your answer? Sir, I think the girl was not blind from the birth because when her mother told him that, when the girl says to her mother that I will do this work in the daytime, by this it proves that he was able to see all the things earlier. ठीक है, आप सभी के आंसर्स लगभग सही है. हाँ, शी वॉज नॉट ब्लाइंड, ये तो अप टू द मार्क है. अगर किसी को लगता है कि नहीं वो जन्म से अंधी थी तो इट इज रॉन्ग. बिकॉज ये क्यों रॉन्ग हो सकता है? द गर्ल वॉज नॉट ब्लाइंड फ्रॉम द बर्थ बिकॉज इसी पोएम में ही वो कहती है, क्या कहती है? आई कैन नॉट वर्क ममा, नाउ इट्स नाइट. दिस शोज, वो क्या बोलती है? आई कैन नॉट वर्क ममा, नाउ इट्स नाइट. एक लाइन ऐसी कही गई है ना पोएम में. तो इस लाइन का मतलब क्या है? दिस लाइन शोज दैट शी हैड डन द निडल वर्क बिफोर. इसके पहले वो निडल वर्क कर चुकी है. ये लाइन ये शो करता है कि शी हैज डन द निडल वर्क बिफोर व्हेन शी वाज एबल टू सी. जब वो देख पा रही थी तब वो निडल वर्क कर चुकी है. दैट इज व्हाई आल्सो शी टोल्ड दैट कि आई वुड बी डूइंग दिस वर्क व्हेन डे लाइट. जब ये दिन होगा उस समय मैं ये काम करूंगी. तो the girls, these responses from the girls shows that the girl was not blind from birth. Okay, that's all. Yes. For this question. Now the last question is, why do you think the old man wanted the girl to look at the view outside? ऐसा आपको क्यों लगता है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो the old man को यहाँ पे पोएट के बारे में कहा गया. जो पोएट है, पोएट wanted the girl to look at the view outside. पोएट क्यों चाहता था कि जो लड़की है वो बाहरी चीजों को, जो वहां के दृश्य थे, जो नजारे थे, उसको देखे. ऐसा क्यों चाहता था? हाँ बताइए, मुस्कान, अभिषेक, कोई भी बताइए. जिसको भी आता है कोई भी बता दे इसका आंसर, और सभी के आंसर सही भी होंगे. आपको क्या लगता है? इसका कोई आंसर तो बुक में है नहीं. यस अभिषेक. Sir, I think the old man wanted the girl to look at the view outside because she wants to attract from the horizon around herself, so that she become happy. चलिए ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है. वहां के जो दृश्य थे बहुत ही अच्छे थे, या कहीं ना कहीं वो उस बच्चे से घुलना मिलना चाह रहा था. मेनी रीजन्स ये भी देयर. लेकिन जो दृश्य थे वो शायद बहुत ही ज्यादा बेहतर था, इसलिए यहाँ पे हॉरिजन वर्ड्स, या जो मतलब हॉरिजन वर्ड्स के जो सिमिलर, हॉरिजन जैसे सिमिलर वर्ड्स को यूटिलाइज किया गया है, यूज किया गया है. तो देयर मे बी द रीजन. इट इज ऑन यू दैट कि हाउ डू यू थिंक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी एक्सेप्टेबल. क्योंकि आपको क्या लगता है, इट इज ऑन यू. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, और जो भी आप आंसर लिखते हैं, ऑल द आंसर्स आर एक्सेप्टेबल फॉर दिस क्वेश्चन. सो दिस इज हाउ वी हैव completed the get going section, and there is also in the book B. Let us discuss that things also. अभी book B में भी होगा. ठीक है, देखते हैं.
अच्छा, वन मोर थिंग, रत्नेश तिवारी ने बोला अभी एक आंसर दिया कि अगर वो जन्म से अंधी होती तो निडल वर्क कैसे सीखी होती? आपको पता है? देयर आर सम ब्लाइंड पर्सन हु रीड द बुक, वो बुक्स को पढ़ते हैं। बुक्स को कैसे पढ़ते हैं? कौन सी विधि के थ्रू? कौन बता सकता है? ऐसे पर्सन जिनको दिखाई नहीं पड़ता, वो कहने के पढ़ते तो हैं, उनके लिए अलग से ही एक, हाँ यस अनुराग उपाध्याय, इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। They read through braille. क्या बेटा, फिर से बोलिए। They read, फिर से बोलिए अनुराग, इट इज नॉट क्लियर व्हाट यू स्पोक। sir, they read through braille. Braille. Yes. If I ask you all to open the page number, you would be learning about that. Visual Abbey. आपका BRAILLE, braille. This is a way the blind person, the visual handicapped person, the visually disabled persons able to read the books. इसके बारे में भी आपका विजुअल अवे में डिटेल में है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है जब वो पढ़ना सीख सकते हैं तो बुनाई भी सीख सकते हैं, लेकिन वो कैसे, वो इसके पहले जो ये शो करता है कि हाँ वो जन्म से अंधे नहीं थी, वो ये नहीं कि वो बुनाई कर ले रही थी इस वजह से नहीं जन्म से अंधे थी। हो सकता है उस जैसे ब्रेल लिपि के थ्रू जैसे पढ़ना सीख लेते हैं, उसी तरीके से किसी और भी तरीके से वो बुनाई भी सीख गई हो। हाँ, इसके पहले जो उसका जो रिस्पॉन्स रहा, जो उसका बोलने का तरीका रहा कि नहीं अभी नहीं, मैं दिन के समय कर लूंगी, यानी वो देख पा रही थी, इसके पहले उसके लाइफ में दिन उजाले वाला दिन आ चुका था, समय आ चुका था। सो नाउ लेट्स मूव अहेड ऑन द बुक बी। इन द बुक बी, थ्रू द रीडिंग जंक्शन देयर इज ओनली 2 क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जल्दी से पढ़े कोई, हम ही पढ़ते हैं। डिस्क्राइब 3 challenges that you think a blind person faces. How can other people help them overcome these challenges? आपको ऐसे 3 challenges को डिस्क्राइब करना है, बताना है, that you think a blind person face, जो कि आपको लगता है कि जो ब्लाइंड पर्सन है वो फेस करता है। ऐसे कौन से 3 challenges हो सकते हैं? How can other people help them overcome these challenges? जो दूसरे लोग हैं वो कैसे इस तरह के पर्सन्स की हेल्प कर सकते हैं टू ओवरकम दी चैलेंजेस, इन चैलेंजेस से ओवरकम होने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल नीड टू टेल द 3 चैलेंज दैट यू थिंक अ ब्लाइंड पर्सन फेस। इसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, आप कुछ और बता सकते हैं, कुछ और बता सकते हैं, क्योंकि 3 ही नहीं बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। तो कौन बताएगा जल्दी से? ओनली 5 मिनट इज रिमेनिंग। तो मैं किसी को इम्पोज नहीं करूंगा, किसी को फोर्स नहीं करूंगा, जिसको भी बताना है जल्दी से बताएं, so that we can complete it the session. Okay, अनुराग उपाध्याय। Right. blind man faces problems by crossing roads. The people can help them by helping them to cross road, and the blind people have problem in cooking, so anyone can cook food for them, and a blind man faces problem to go anywhere. A person can help them to go him anywhere. Okay, good. Any other who want to respond on this question? Yes, sir. Abhishek. Sir, blind person can face problems like writing, and someone can help him to go outside for the personal work for them. And third option, sir, to take care of the home.
ठीक है, ओनली 4 मिनट इज रिमेनिंग। आप लोग के अपने खुद के आंसर हो सकते हैं, आप लोग खुद अपना आंसर लिख सकते हैं। देयर आर मेनी चैलेंजेस जिसको आप लिख सकते हैं, एंड ऑल्सो देयर इज, हर चैलेंजेस के अपने एक तरीके हैं कि उस चैलेंजेस से उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए हाउ द अदर पीपल एंड हाउ वी पीपल कैन हेल्प देम। आप कह सकते हैं चैलेंजेस की बातें करें तो आप लोगों ने जो बताया उसके अलावा भी देयर आर मेनी चैलेंजेस, लाइक जो ब्लाइंडनेस है इट अफेक्ट्स अ पर्सन्स एबिलिटी, ये पर्सन्स की एबिलिटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, उनकी क्षमताओं को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ये कहीं ना कहीं आपको परेशानी नहीं करता, बट उनकी क्षमताओं को भी प्रभावित करता है। द ब्लाइंडनेस अफेक्ट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू परफॉर्म मेनी जॉब्स या ड्यूटीज एंड ऑल्सो अचीव एंड ऑल्सो एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ अ वर्क प्लेस। कई सारे जॉब या कई सारे ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए जो उनकी जो एबिलिटी होती है, जो उनकी योग्यता होती है, जो उनकी क्षमता होती है, उसको भी प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है, कई सारे ब्लाइंड पर्सन हैं जिनमें क्षमताएं तो होती हैं उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, बट कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करती है। जो ब्लाइंडनेस है ये उनके क्षमताओं को भी प्रभावित करती है। या कि स्पोर्ट्स की बात ले लिया जाए या एकेडमिक्स की बात की लिया जाए, ऐसा नहीं है कि वो एकेडमिक्स में बहुत कमजोर है, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप देख ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ आता है, उनको भी बहुत कुछ आ सकता है, किसी मायने में आपसे कम नहीं है, बट दिस ब्लाइंडनेस विल अफेक्ट हिज और हर एबिलिटी। दिस ब्लाइंडनेस विल अफेक्ट हिज और हर कैपेबिलिटीज, उसकी जो कैपेबिलिटीज है, उसकी जो क्षमताएं हैं उसको अफेक्ट करेगा, चाहे वो स्पोर्ट्स का मैटर हो, चाहे एकेडमिक्स का हो, चाहे कोई जॉब परफॉर्म करना हो, हर जगह ये दिक्कत करेगा। ब्लाइंडनेस अफेक्ट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू सेल्फ नेविगेट। जो ब्लाइंडनेस है ये किसी पर्सन को सेल्फ नेविगेट यानी कहाँ पे जाना है, कहाँ घूमना है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, इसको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। So there are n number of the reason, you all can write by yourself. The last question is, how do you think the life of a person who has been blind from birth is different from that of a person who has turned blind later in life? Do you think life might be more difficult in the later case? Give reason for your answer. बेटा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। How do you think, आप कैसे सोचते हैं, आप ऐसा कैसे लेते हैं? The life of a person who has been blind from birth, आप दो तरह के पर्सन है, ऐसा पर्सन जो जन्म से अंधा हो और ऐसा पर्सन जो बाद में वो अंधा हो गया हो, तो दोनों के लाइफ में आपको क्या अंतर दिखता है? डू यू थिंक, क्या आपको लगता है द लाइफ माइट बी मोर डिफिकल्ट इन द लेटर केस, जो शुरू में जो जन्म से अंधे होते हैं उनकी लाइफ से ज्यादा जो लेटर केस में, जो बाद में जो लोग अंधे होते हैं उनकी लाइफ ज्यादा डिफिकल्ट होती है? आपको क्या लगता है किसकी लाइफ, जो जन्म से अंधे होते हैं वो या जो बाद में अंधे होते हैं उनकी लाइफ, किसके ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज तो दोनों के लिए है, बट दोनों में ज्यादा डिफिकल्टीज या ज्यादा प्रॉब्लम किसको वियर करना होगा? गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको रीजन भी बताना है। कौन कौन बताएगा जल्दी से, लास्ट मिनट इज गोइंग, एक दो रेस्पॉन्स कॉल सुनूंगा मैं जल्दी से। अभिषेक सुनाइए, बताइए। So I think the life might be more difficult in later case because in later case that person will affected by the work that they work, but who was blind from their birth, they are adopted in that condition. बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। पीपल हु आर बोर्न ब्लाइंड एट बर्थ हैव द अपॉर्चुनिटी टू अडॉप्ट देयर सराउंडिंग। जो बच्चे जन्म से ही अंधे होते हैं वो अपने सराउंडिंग को, जो उनको एक तरीके से अवसर रहता है अपने सराउंडिंग को अडॉप्ट करने में, बहुत इजीली वो सब मिला के अपने सराउंडिंग को अडॉप्ट कर लेते हैं, बिकॉज द सिचुएशन इज ए कांस्टेंट इन देयर लाइफ। जो उनके सिचुएशन होती है उनके लाइफ में वो कांस्टेंट रहती है, बट जो बाद में अंधे होते हैं उनके लिए सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज उसके पहले उनको